اللہ پاک نے اعلان فرمایا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ فرمایا لوگو قرآن ایک عزت والی کتاب ہے، جیڑا بندہ اس قرآن دی عزت کردہ ہے، آواز آہستہ کیتی جائے تاکہ ساتھیاں نوں سمجھ لگے۔ فرمایا قرآن ایک عزت والی کتاب ہے، جیڑا بندہ اس قرآن دی عزت کردہ ہے اللہ ان دی عزت نو بلند کر دیندے نے۔ حضرات گرامی میں جڑا پیغام دینا چاہنا ہو، چاہے انسان کمزور کیوں نہ ہوئے اللہ اس نو بڑا مقام عطا کر دیندے نے، چاہے بندہ غریب کیوں نہ ہوئے امیرہ نالو بڑھ کے اللہ شان عطا کر دیندے نے، چاہے بندہ غلام کیوں نہ ہوئے آزاد بندے نالو زیادہ اللہ انہوں عزت عظمت عطا کر دیندے نے۔ میرے نبی فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگو اے جڑی کتاب نا ان دی وجہ دے نال اللہ بڑیاں بڑیاں نو عزت عطا کر دیندے نے، اور جنہ قرآن نو چھوڑ دیتا اللہ انہاں نو دنیا تے ذلیل کر دیندے نے۔ حضرات گرامی عزتاں کیویں ملدیاں نے؟ اج ہر بندہ کہندا ہے میں کامیاب ہو جاواں، ہر بندہ کہندا ہے میں کامران ہو جاواں، ہر بندہ کہندا ہے مینوں عزت مل جائے، مینوں مقام مل جائے۔ لوگو عزت دا صرف ایک ہی رستہ قرآن پاک دی عزت کرو، اللہ تواڈی عزت نو بلند کر دین گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ دے اندر ایک گورنر مقرر کیتے، نال بیت اللہ دا امام بنا چڑھیا، انہاں دا نام نافع بن حارث ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تسی بیت اللہ اندر امام تاں بھی کرانیاں نے۔ حضرات گرامی ایک مرتبہ میرے عمر سفر تے جا رہے نے، حضرت عمر دیاں ملاقاتاں اسفان تے مقام تے حضرت نافع بن حارث دے نال ہوندیاں نے۔ حضرت عمر فرماندے نے اے نافع میں تانوں بیت اللہ دا امام مقرر کیتا، تہاڈیاں میریاں سفر دے اندر اچانک ملاقاتاں ہو رہیاں نے، دسو تے صحیح نہ اپنی جگہ تے امام کنوں مقرر کر کے آئے جے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو سوال کیتا نافع فرماندے نے اے عمر میں ابن ابزانو بیت اللہ دا امام بنا کر کے آگے آؤ۔ عمر فرماندے نے ابن ابزا کون ہے؟ فرمایا میرا آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر نے سنیا تے بڑا تعجب کیتا، آکھیا نافع تسی ایک آزاد کردہ غلام نو بیت اللہ دا امام بنا کر کے آگے، کیا اور کوئی بندہ موجود نہیں سی؟ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، حضرت نافع نے دو خوبیاں بیان کی تیاں، اگر چاندے جے معاشرے اندر عزت پیدا ہو جائے، اگر چاندے جے معاشرے اندر مقام مل جائے، اگر چاندے جے ساڈا تے ساڈی اولاد دا نام روشن ہو جائے، یہ دو خوبیاں اپنے بچیاں دے اندر پیدا کر لو، اپنے بیٹے اندر پیدا کر لو، اپنی بیٹی اندر پیدا کر لو۔ فرماندے نے انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ فرمایا عمر لوگ تے اور بھی بڑے سی، لیکن میں ابن ابزانو بیت اللہ دا امام تا مقرر کیتا ہے نا، ان دے تو بڑا قرآن دا قاری کوئی نہیں، ان دے تو بڑا نبی دی حدیث دا عالم کوئی نہیں۔ حضرت عمر فرماندے نے تاتے میرے نبی نے سچ فرمایا، اللہ اس کتاب دی وجہ تو عزت عطا کر دینے، کتے جڑا بندہ کل غلام سی آج قرآن دی برکت دے نال اللہ نے بیت اللہ دا امام بنا چھڑے آئے۔
फरमाया जेड़ा गुलाम सी अज अल्लाह ने बैतुल्ला दा इमाम बना छड़िया। और हजरात तुहानू भी मैं एक नसीहत करांगा, अपनी औलाद नू जदों डांटो ना, गालियां ना निकालिया करो, अपनी औलाद नू बददुआवां ना दिया करो, बल्कि बच्चा शरारत भी करे फिर भी दुआ ही करिया करो। अज बैतुल्ला दे इमाम शेख अब्दुल रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह तआला अपनी जिंदगी दा वाकया बयान करदे ने, फरमांदे ने मैं छोटा हुंदा सी घर अंदर कभी कभी शरारतां करदा, जदों मैं शरारतां करदा मेरी मां मैनू मारदी नहीं सी, मेरी मां मैनू डांटदी नहीं सी, मेरी मां मैनू झिड़कदी नहीं सी, मेरी मां मैनू गालियां नहीं सी निकालदी, मेरी मां मैनू डांटदी नहीं सी, मेरी मां मैनू बददुआवां नहीं सी देंदी। लेकिन जदों मैं शरारतां करदा मेरी मां मैनू मना करदी, बेटा शरारता ना कर, मैं तेरी मां दुआ करनी आ अल्लाह तेनू बैतुल्ला दा इमाम बना दे, अल्लाह तेनू बैतुल्ला दा इमाम बना दे। फरमांदे बार बार मेरी मां ने दुआवां करनी आ, मां ने मैनू कुरान पढ़ाया, मां ने मैनू कुरान याद करवाया, नाल मां ने दुआवां कीतियां। फरमांदे ने लोगो तुहाडे सामने जिंदा मिसाल मौजूद है, जेड़ा अब्दुल रहमान बचपन अंदर शरारता करदा सी ते मां दुआवां करदी सी। अज कुरान दी बरकत दे नाल अल्लाह ने उस अब्दुल रहमान नो बैतुल्ला दा इमाम बना छड़िया है। हजरात गिरामी ये कुरान बड़ी इज्जत वाली किताब है, ये कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है। जेड़ा बंदा इस कुरान दी इज्जत करदा है ना अल्लाह उनदी इज्जत नू बुलंद कर देने, जेड़ा इंदी इज्जत करदा है अल्लाह उनदी शान नू बुलंद कर देंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे ने देखिया कुरान दा एक टुकड़ा जमीन ते गिरया होया, उनदे ते अल्लाह दी कलाम लिखी है, उनदे ते अल्लाह दा नाम लिखे है। फरमाया बंदे ने वेखिया, वेख के उन्होंने साफ कीता, जमीन तो उठा करके उन्होंने साफ कीता, साफ करके उन्होंने बुलंद मुकाम ते इज्जत एहतराम दे नाल रख दिता। मेरे रब करीम अर्शा ते ऐलान करदे ने ओ मेरे बंदे तू जमीन ते मेरे नाम नू बुलंद कीता है, जा मैं अल्लाह ने दुनिया ते तेरे नाम नू बुलंद कर छड़िया है। फरमाया तू मेरा नाम बुलंद कीता, मैं तेरे नाम नू बुलंद कर दिता। हजरात किताब बड़ी इज्जत वाली है, जेड़ा इस किताब दी इज्जत करदा है अल्लाह उनदी इज्जत नू बुलंद कर देंदे। तवज्जो करना, दो हदीसा सुना करके अपनी बात नू खत्म करांगा। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक कबीले वाले आए, आकर के कलमा पढ़े मुसलमान हो गए। जदों वापस जान लगे कहने लगे अल्लाह दे रसूल असी वापस जा करके की करना है। हजरात गिरामी मेरे नबी ने फरमाया जदों अजान दा टाइम हो जाएगा एक बंदा तुहाडे अंदर अजान देगा और एक बंदा जिन्हों कुरान ज्यादा याद है वो तुहाडे अंदरों जमात कराएगा। हजरात गिरामी जदों कुरान ज्यादा याद दी बात सुनी ये सारे एक दूसरे वाल देखते ने, सोने कलमा ते अज पढ़े है कुरान किन्नू याद होएगा साडे अंदरों। लेकिन हजरात गिरामी इन्हां दे अंदर एक 6 साल दा बच्चा है ना, ये 6 साल दा बच्चा बोले ओ कबीले वाले ओ परेशान ना होया जे, ओ कबीले वाले ओ गम ना करे जे, तुसी कह रहे जे साडे अंदर किसे नू कुरान नहीं आंदा की होया मेरी 6 साल उम्र है लेकिन तुहाडे सारे नालों ज्यादा मैनू कुरान याद है। और नेकोकारा दे रहने वाले हो अपने बच्चियां वाल देखो, साडा 6 साल दा बच्चा व्हाट्सएप दी चैट कर लेंदा है, साडा 6 साल दा बच्चा गूगल दियां सर्चा कर लेंदा है, साडा 6 साल दा बच्चा जनाब मकैनिक ते बन करके मेहनत ते कर लेंदा है, साडा 6 साल दा बच्चा फेसबुक ते चला लेंदा है, साडा 6 साल दा
बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करना ते जानदा है, जे नहीं आंदा ते अल्लाह दा कुरान नहीं आंदा। ये 6 साल दा बच्चा है ना, कहने लगा लोगो परेशान होने दी लोड़ नहीं है, तुहानू गम करन दी लोड़ नहीं है, मैं तुहानू जमात करावांगा। कबीले वाले ने आख्या अज ते कलमा पढ़े है, तेनू कुरान इतना किवें याद हो गया। हजरात गिरामी अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस अंदर आने वालों, अपने बच्चियां नू कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चियां नू इस मदरसे अंदर लै करके आओ, बच्चियां नू बच्चियां दे मदरसे अंदर तालीम दिलवाओ। मेरे भाई सुहेल माविया साहब अदारा बना करके बैठे ने, इस अदारे नू आबाद करो, अल्लाह तुहानू आबाद करनगे। देखो 6 साल दा बच्चा है, अल्लाह ने कितनी अजमत अता की है। कहने लगा लोगो सुन लो, जान दे जे मैनू कुरान किवें याद है। मेरा जड़ा घर है ना, मदीने तो जड़ी मक्के नू सड़क जांदी है, उस घर दे ऊपर है नबी दे सहाबा मक्के जांदे, साडे घर दे अगे पड़ाओ डाल दे, सहाबा कुरान पढ़ दे, मैं सुन सुन के इन्हां कोलों कुरान नू याद कर लेंदा, मैनू बड़ा ही कुरान याद है। हजरात गिरामी उम्र कितनी है? 6 साल, लेकिन सीने अंदर की है अल्लाह दा कुरान। जदों मेरे नबी ने सुनिया ये 6 साल दे बच्चे नू कुरान बड़ा आंदा है, नबी पाक ने फरमाया ओ कबीले वाले हो, तुहानू गम करन दी लोड़ नहीं है, ये 6 साल दे बच्चे नू कुरान दी बरकत दे नाल मैं सारे कबीले वालियां दा इमाम बना छड़िया है। इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुरान बड़ी इज्जत वाली किताब है, बड़ी अजमत वाली किताब है। जड़ा बंदा इनदी इज्जत करदा है अल्लाह उनदी इज्जत नू बुलंद कर देंदे ने। अज हर बंदा परेशान है जी, की करा मैं गरीब आऊं, अगर मेरा बच्चा भी कुरान पढ़न चला गया ये कमाएगा कितों, ये खाएगा कितों। अगर बच्चे नू दीन पढ़ा दिता ये जनाब इंदा फ्यूचर खराब हो जाएगा, इंदा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और मेरा वीर कदी भी ना सोची कुरान दी वजह दे नाल मुस्तकबिल बर्बाद हुंदा है, कुरान दी वजह दे नाल फ्यूचर खराब हुंदा है। किते मैनू याद है मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी, अखा तो नबीने ने अखा है नहीं ने, पाकिस्तान हिंदुस्तान अलहदा नहीं होया। मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी, वजीराबाद तो चलते ने इंडिया दे शहर दिल्ली दे अंदर मौलाना नजीर हुसैन मुहद्दिस तेलवी राहिमहुल्लाह दे मदरसे अंदर जांदे ने। जदों मदरसे अंदर गए आख्या उस्ताद जी मैनू दाखला चाहिए। उस्ताद कहने लगे बेटा अगर मैं तेरा नबीना होना वेखा ते मेरा मोड़न ते दिल नहीं करदा, अगर मैं तेरा सफर वेखा मेरा फिर भी बेटा मोड़न ते दिल नहीं करदा। लेकिन बेटा साडे अदारे दी मजबूरी है, चंद घरां दे अंदरों खाना लगे है, बच्चे जांदे ने खाना खा के आ जांदे ने, या बच्चियां दा खाना लोग मदरसे अंदर दे देंदे ने। और लोगों अज सानू सोचना पवेगा मैं दीन वास्ते की कीता, तुसी दीन वास्ते की कीता। अपना किचन देखो कितने कितने महीने दा राशन मौजूद है, अपनी फ्रिजां देखो कितने कितने हफ्तियां दा फ्रिज दे अंदर सामान मौजूद है। लेकिन फिर भी असी कहने दीन ते चलना बड़ा ही मुश्किल काम है। मेरा वीर मुश्किलां ते इन्हों के आ जांदा है। नबीना वजीराबाद तो गया इंडिया दे शहर दिल्ली अंदर पहुंचे जा करके इन्हें आख्या उस्ताद जी मैनू दाखला दे दियो। उस्ताद जी कहते ने साडे को रोटी का इंतजाम नहीं, आइंदा साल आया जे तुहाडे वास्ते जगह बना रखांगे। कहने लगा उस्ताद जी तुहाडा हुक्म मन करके मैं वापस ते चला जावांगा, लेकिन इंज करो जान तो पहले मैनू अपने तालबे इलम वीरां दे नाल एक दफा गुफ्तगू कर लैन दो, मैनू एक वाज कर लैन दो, मैनू एक तकरीर कर लैन दो। आख्या के इजाजत ने तमाम तुलाबाए किराम नु जमा किया गया। ए नबीना जड़ा इल्म नु हासिल करन वास्ते जड़ा दीन सीखण वास्ते वजीराबाद तो चलिया ते इंडिया दे शहर दिल्ली गया। ए नबीना खड़ा हो गया कहन लगा ओ मेरे तालबे इल्म वीरो तुसी मैनू जानदे नहीं, तुसी मैनू पहचानदे नहीं, तुहाडा मेरा तारफ नहीं है। मैं आप अपने
अपना तारफ करा देना। मैं पाकिस्तान दे शहर वजीराबाद तो चले आओ, तुहाडे शहर दिल्ली अंदर आया आ करके मैं कुरान दी तालीम नू हासिल करना चाहया, लेकिन जदों मैं क्लास अंदर बैठन दा इरादा कीता, मैनू मुदीर साहब ने आखिया साडे मदरसे खाने दा इंतजाम नहीं है। और मेरे तालबे इलम वीरो, तुहाडी ते लोकां दे घरां अंदरों रोटी आ जांदी है, तुसी ते खाना खा लेंदे जे। मैं तुहानू ये नहीं कहंदा जदों तुहाडा खाना आवे मैनू भी नाल बटा लिया जे। मैं तुहानू ये नहीं कहंदा जदों तुहाडा खाना आए अद्धा मेरे लिए छड्ड दे जे। मैं तुहानू ये नहीं कहंदा एक दिन एक नाल बटा ले, दूसरे दिन दूसरा नाल बटा ले। ओ मेरे तालबे इलम वीरो, मैं तुहानू ये मुतालबा नहीं करदा, मैं सिर्फ तुहाडे सामने एक दरखास्त रखना वा, जदों तुहाडा खाना आवे सिर्फ एक रोटी दा टुकड़ा, सिर्फ एक रोटी दा लुकमा मेरे वीरो मेरे लिए छोड़ दे जे। सालन भी ना छोड़े जे, मेरे लिए पूरा खाना भी ना छोड़े जे, सिर्फ एक रोटी दा टुकड़ा मेरे लिए छोड़ दे जे। मैं सालम दे नाल नहीं खावांगा, तुहाडे टुकड़ियां नू जमा करके मैं मस्जिद दियां टूटियां ते बैठ करके पानी नाल खा लवांगा। तुहाडा एक लुकमे नाल बनना कुछ नहीं, लेकिन मैं कुरान दा कारी बन जावांगा, मैं कुरान पढ़न वाला बन जावांगा। हजरात फिर कुरान पढ़िया, मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी राहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस बने, बहुत बड़े कुरान दे कारी, शेखुल कुरान शेखुल हदीस बने। जिस मकसद वास्ते मैं बात बयान कीती है, जदों मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी फोत होए ना, नबीना समझ के बाप ने, जनाब बाप ने नबीना समझ के इन्हां नूं मदरसे दाखिल कराया सी, लेकिन जदों बाप फोत होया ना हजरात गिरामी, बाप फोत हो गया, 4-5 बेटे दुनिया कमान वाले, ए नबीना कुरान पढ़न वाला। बाप दियां मुलाकातां ख्वाब दे अंदर किसी दोस्त दे नाल हुंदियां ने, उन्हें पूछया बतला अल्लाह पाक ने तेरे नाल की सलूक कीता, कायनात दे रब ने तेरे नाल की मामला कीता। हजरात गिरामी, इस नबी ने कारी दा बाप मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी राहिमहुल्लाह दा बाप ख्वाब दे अंदर कहने लगा, काश मेरे सारे बेटे नबी ने हुंदे, मैं सारियां नू कुरान दा कारी बना देंदा, मैं सारियां नू नबी दी हदीस पढ़ा देंदा। आखिया क्यों? दुनिया ते हर बंदे दी ख्वाहिश हुंदी है मेरा बेटा अखां वाला होए, मेरा बेटा डिग्रियां वाला होए, मेरा बेटा शोहरतां वाला होए, मेरा बेटा मुकाम वाला होए, मेरे बेटे कोल दुनिया दियां ताटियां होन। लेकिन तुसी कह रहे जे काश मेरे सारे बेटे नबी ने हुंदे, मैं सारियां नू कुरान दा कारी बनांदा। हजरात गिरामी, मौलाना अब्दुल मनान वजीराबादी दा बाप ख्वाब अंदर कहने लगा, ओ लोगो जानदे नहीं जिन्नू नबी ना समझ के मदरसे दाखिल कराया सी, उनदे कुरान पढ़न दी बरकत दे नाल अल्लाह ने मैनू माफ करके अपनी जन्नत दा हकदार बना छड़िया है। आखिया नबीने दी वजह तो, कुरान दे कारी दी वजह तो अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। हजरात बात तवील ना हो जाए, बात नु खत्म करना, लेकिन हुन जड़ी अगली तकरीर है ना अद्धी 2-4 मिनट नाल तुहानू भी करनी पड़ेगी। ये ते कुरान दी बात होगी, आओ साहिबे कुरान दी बात करिए। साडी जमात दे एक बुजुर्ग सी, अखा तो नबीने सी, शायर इस्लाम मौलाना अब्दुल वहीद रब्बानी राहिमहुल्लाह उकाड़े वाले, बड़े प्यारे अंदाज नाल कुरान और साहिबे कुरान दी अजमत बयान करदे सी। फरमांदे ने क्या बात नबी दी शान दिया, शान मुस्तफा जलसा तुसी कहना नबी दी शान दिया, असी सारे हजूर दी शान दिया, तुमा पाने आ अल्लाह साडी शान नु बुलंद कर देंगे। मिल करके मेरे नाल आखो क्या बात नबी दी, इंज नहीं प्यार दे नाल मुहब्बत दे नाल अकीदत दे नाल बात आकर वाल आ रही है। बूढ़ा बीमार ना बोले, जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, हजूर दे गुलामां दी गुलामी, हजूर दे गुलामां
गुलामां दे अंदर हाजरी लगवान वास्ते हजूर दे गुलामां अंदर नाम लिखवान वास्ते मेरे नबी दी शान नू बयान करो मिल करके आको क्या बात है नबी दी शान दिया तुमा पै गईया जग विच आंदिया क्या बात है नबी दी शान दिया ओ किस्मत वालिया मावा ने पुत्र जिना दे कारी ने ओ किस्मत वालिया मावा ने पुत्र जिना दे कारी ने ओ बाप मुकदरा वाले ने बच्चे पढ़ दे जिना दे बुखारी ने हज़रात गिरामी मैनू सरगोदे दा वाक़या याद आ गया साडे जामे इमाम बुखारी दे अंदर बुखारी शरीफ हिफज कराई जाती है एक बच्चा जड़ा कुरान दा भी कारी है और उन्हें बुखारी भी अपने सीने अंदर महफूज की है जुबानी उसनू याद है सरगोदे दा रहने वाला साडे जामे अंदर पढ़ने वाला हज़रात माँ फौत हो गई माँ दा जनाजा आगे पड़े है मदरसे दे शेखुल हदीस भी मौजूद ने मदरसे दे तुलाबा भी मौजूद ने मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद सुल्तान शाह नकवी हाफिज़ा उल्लाह ताला भी मौजूद ने लेकिन मोहतरम शाह साहब फरमान लगे लोगो जनाजा मैं नहीं पढ़ावांगा जनाजा मेरे जामिया दा कोई उस्ताद नहीं पढ़ाएगा जनाजा मेरे जामिया दा कोई शेखुल हदीस नहीं पढ़ाएगा बल्कि ओ बेटा जिन्हों इस मां ने कुरान याद कराया जिन्हों इस मां ने बुखारी याद करवाई है आज ओ बेटा जनाजा पढ़ाएगा अल्लाह दी कसम छोटी जी उम्र दा बच्चा जदों जनाजा पढ़ाण वास्ते अगे होया उलमा दे आंसू जारी हो गए तुलाबा दी अखां अंदर आंसू जारी हो गए जनाजा मां दा है बेटा कुरान दा कारी है बेटा बुखारी पढ़न वाला है रो रो के कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फिर लहा वरहमहा अल्लाहुम्मा अदखिल अल जन्नतल फिरदौस अल्लाह मेरी मां नू जन्नत दे दे अल्लाह मैं तेरे कुरान दा कारी कह रहा हूं मेरी मां नू जन्नत दे दे मैं बुखारी दा हाफिज कह रहा हूं मेरी मां नू जन्नत दे दे जिंदा बेटा कारी है जिन्ने सारी बुखारी पढ़ी है दसो ते सही ना इधर दुआ मांग रहा होएगा उधर रब जन्नत अंदर दर्जे बुलंद कर रहा होएगा ताई ते कह रहे हैं ओ किस्मत वाली मावा ने पुत्र जिना दे कारी ने ओ बाप मुकदरा वाले ने बच्चे पढ़ दे जिना दे बुखारी ने पर रख दे फरिश्ते पैरा थले पर रख दे फरिश्ते पैरा थले ए अजमत रब दे कुरान दिया एक बारी सारे मिल के आखो क्या बात नबी दी शाम दिया इंज नहीं बात मुकाइए मिल करके आखो बल्कि मनन वाला हाथ खड़ा करे मैं जियारत करा हजूर दी शान नू अपने हाथ नू बुलंद करके आखो क्या बात नबी दी शाम दिया तुमा पै गईया जग विच आम दिया आखिरी जुमला ते आखिरी बात हाफिज़ कुरान दे मां प्यो नू रब सोने दा ताज पहनावेगा हाफिज़ कुरान दे मां प्यो नू रब सोने दा ताज पहनावेगा नाल मिंबर नूरानी उचियां ते अदबा नाल बठावेगा हाफिज़ कुरान दे मां प्यो नू रब सोने दा ताज पहनावेगा नाल मिंबर नूरानी उचियां ते अदबा नाल बठावेगा रब इज्जत ओ नानू देंदा है रब इज्जत ओ नानू देंदा है रब अजमत ओ नानू देंदा है
جڑے قدراں کرن قرآن دیا مل کر کیا کو کیا بات نبی دی اللہ تعالیٰ سانو شان مصطفیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو عظمت قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آخری پیغام یہی ہے قرآن نو سینے نہ لگا لو تسی قرآن دی عزت کرو گے اللہ تہاڈی عزت نو بلند کر دیں گے اور اگر کسی دے گھر اندر قرآن ہے اور اس نے غلاف اندر لپیٹ کر کے اچھا رکھے ہے کدی پڑھیا نہیں اور اندے تے گرد و غبار مٹی کٹا پہ چکے ہے انہوں میں پیغام دینا چاہنا ایک کٹا قرآن تے نہیں پیا بلکہ تیرے مقدران تے پہ چکے ہے اس کتاب نو سینے نہ لگاؤ حضور دی سیرت دا مطالعہ کرو اللہ میرے سمیں سب ان باتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین